Everyone enter your full name in chat box. जब कोई भी आप अपना नाम लिखना full name ही लिखना, ठीक है? Now and onwards मैं मेरा एक Python program है and I put your chat comments in a Python program and that extract your name and directly prepare your attendance. This way I suggest you that enter your full name on this. So if you people have any question, you can ask me here. Am I audible to you? Yes, sir. हाँ, तो कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं? 24, लेकिन 23 नहीं अपना नाम लेना चाहना, ठीक है? 23 और 23 है, ठीक है, फाइन। तो हाँ, तो कल मैंने किसका इमेज मिला मुझे? अरिहंत, अर्जुन, जतिन, महेल, मानव मखीजा, मेतुल एंड प्रखर। आई होप इतने ही लोगों ने कल मुझे शेयर किया। अगर किसी और ने शेयर किया होगा दैट आई विल थिंक ऑफ and I can show you the kind of work they did. This is first one and it's okay. Aryan, Arjun, this was also good for you, and this work is Jatin. Exactly perfect segmentation, but text is not there, but everything else is fine. And this is again very good. Mahenj, I think, if I'm right, yeah, it's Mahenj. And this is Sumana. Good work. You have to just position the image at perfect place, and the good one thing is we have perfect gap between every division, so this is also good. And this was Metal. This send me. This is Prakhar. Prakash. It's also again perfect. I just have a doubt that if you have centered the site or not. If not, then kindly center it. I'm taking the chat. Just wait. So I think just yeah. Divya sir, can I send today? I have attended yesterday's class because of manager. Anyway, you can send it by today or tomorrow. But my objective is everyone must submit. No, everyone must submit. Tanmay, you have submitted. Okay, I will check it out. So, what is the problem with others? I was trying to know कि क्या problem है कि बाकी लोग इसको submit नहीं कर पाए. Please answer today. My laptop will return from repair, so I will try to. Today submit करो या by tomorrow. मेरा objective यही है कि इस week में हर किसी को submit करना है. ऐसा नहीं चलेगा. अब मैं आपका लैब का पॉइंट्स तो कम होगा ही अगर आप डिले सबमिट करोगे तो. मैं 2 days spare कर सकता हूँ. If I am taking lab on Thursday, then I will still wait till Saturday, not more than that, because I have to evaluate everything ना. Always मैं I'm sorry मैं इसमें help नहीं कर सकता. आप किसी अपने फ्रेंड से मैनेज करो. What can I do? I can teach you ना.
you can understand my problem also. So this you are in such a course where have a laptop and any computing device is always required. देखो 3 साल बाद आपको एक इंडस्ट्रियल प्रोग्राम में जाना है, ये कोई जनरल कोर्स नहीं है. दिस इज फॉर एवरीवन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट ए जनरल कोर्स. जो जनरल कॉलेजेस में कोर्सेज चलती है वैसा नहीं है. दिस इज 100% डेडिकेटेड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. आपको यहाँ वही पढ़ाया जाएगा और डायरेक्टली पढ़ाया जाएगा. यू नो वेब टेक्नोलॉजी जो बीटेक में बच्चे होते हैं कब पढ़ते हैं? फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में जाके पढ़ते हैं. सी, और ये कोई इतना हैवी टॉपिक है भी नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है. एंड कंप्यूटर साइंस में अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी एक टॉपिक में बेस्ट हो ना, आपको ऐसा नहीं है कि सारे चीजों को पढ़ना है. इफ यू लर्न प्रोग्रामिंग ओनली, है ना, देन इट इज सफिशिएंट टू सर्वाइव टिल द एंड. कोई जरूरत नहीं है बाकी सारा चीज पढ़ने की. इफ यू नो ओनली डेटाबेसेस, पूरा परफेक्ट है. पूरा आपका जो सॉफ्टवेयर करियर है ओनली डेटाबेस पढ़ के ही आप निकाल सकते हो. सो एक न एक टॉपिक में आपको परफेक्ट होना है, और इसलिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट वो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जो आपको डायरेक्ट इंडस्ट्री में जिसका इम्प्लीमेंटेशन. तो आई विल सजेस्ट this class recording. I hope I have uploaded. You just check it out एक बार. मैंने अपलोड किया था, मुझे जितना याद है. यदि अगर नहीं किया हो तो मुझे बताना. लैब क्लासेस का तो नहीं किया, जो लेक्चर क्लास था उसका किया, क्योंकि लैब क्लासेस में तो मैंने बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व करे थे बस. ठीक है. So I am strongly recommending everyone that whenever I teach something, at the very beginning I am very slow to you. मैं ज़्यादा तेज पढ़ा ही नहीं रहा, मैं बहुत धीरे जा रहा हूँ. और अगर इस वीक का टास्क आप इस वीक में नहीं खत्म करते हो तो दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स. इसमें प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है. अगर आपको आइडियल बैठ के डिग्री लेना है तो ये तो बहुत सारी कोर्सेस है. ये आइडियल बैठने के कोर्सेस नहीं है. दिस इज प्रोफेशनल कोर्स. इसको पढ़ के 3 साल अगर आपने इसमें दे दिया, देन यू विल हैव ए हैंडसम जॉब इन योर हैंड. अदरवाइज जो भी अदर कोर्सेस है उसमें आप अटकते रहोगे. Vedant is saying, sir, I have checked the video lecture for 22 and 23 for electrical and programming is not available. 22 and 23 lecture of 22 and 23. अच्छा, 22nd and 23. 22nd 23 में वेब की प्रोग्रामिंग, वेब तो होता नहीं है, प्रोग्रामिंग का हो सकता है नहीं अपलोड किया हुआ है. वो देख लूंगा, आई विल फाइंड सम टाइम. ठीक है. सो मैं जितना भी टास्क दे रहा हूँ उसको कंपलसरी समझ के बनाइए आप लोग, अदरवाइज विल हैव अ डिफिकल्ट. सो अभी मैंने क्या किया हुआ ना कि एक मॉडल तैयार किया था. that is still on your screen. I am just increasing its size. ठीक है. ये हम लोगों के पास अभी का बना हुआ कंपोनेंट है. इस कंपोनेंट में there is any question? इसमें से करना so इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था. इसमें हमने देखा था कि अच्छा इस दोनों के बीच मार्जिन है और मेन्यू और इसके बीच मार्जिन नहीं है. मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन आ जाए. हाँ, आप प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं मीनवाइल, क्योंकि अभी जितना मैंने पढ़ा दिया ना इसमें प्रॉब्लम्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, मैं यहाँ पे ये मेन्यू और प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करूँ. तो मेन्यू का जो मेन्यू में मैं मार्जिन डाल देता हूँ, कि हेडर में किसी एक में मैं मार्जिन डाल देता हूँ. मार्जिन मुझे टॉप से कुछ लेना नहीं है. टॉप से भी मैं 5 पिक्सल ले लेता हूँ ताकि साइड हमारा ऊपर चिपका न लगे. और बॉटम भी मैं 5 पिक्सल ले लेता हूँ. 5 पिक्सल इज आइडियल.
तो देखते हैं ऐसा करने से क्या होता है। तो यहाँ पे 5 पिक्सल हमारे पास गैप आ गया और ये ऊपर से भी 5 पिक्सल का गैप मुझे मिल गया है। So things are Margin. okay now. Next thing what we would see today. देखो HTML लिस्ट कैसे तैयार करें। जैसे ये वाला लिस्ट देखना होगा या ये वाला लिस्ट देना होगा, है ना। तो दो टाइप के लिस्ट हो सकते हैं। इस लिस्ट को क्या बोलेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होगा 2 3 4 एंड दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें नंबरिंग OL. ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, सो अनऑर्डर्ड लिस्ट को UL stand for unordered, LL stands for list and ordered list। ठीक है, तो और ordered list जो होता है वो OL से स्टार्ट होता है। ओ ठीक है, सो an unordered list starts with UL and इसके अंदर आइटम्स जो होते हैं, क्या चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो चाहे ऑर्डर्ड लिस्ट हो, उसको LI से ले लिस्ट, LI stands for list। तो देखो हमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो हमने UL स्टार्ट किया और UL को क्लोज किया और इसके बीच में हमें क्या क्या लिखना है, हमें लिखना है कॉफी टी मिल्क, तो LI कॉफी, LI टी, LI मिल्क। तो इसको मैं यहाँ कर दूँ तो देखो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हेडिंग को मैं हटा दे रहा हूँ, कुछ जरूरत नहीं उस हेडिंग की। ठीक है, अभी मैं इसमें चाहता हूँ कि एक और सेक्शन ऐड करूँ, LI टेक्स्ट वन, LI को क्लोज कर दिया। अभी मैं अगर इसको रन करूँ तो क्या हो गया, टेक्स्ट वन। अभी इसको लिस्ट को आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करते चलो, जितना बड़ा आप चाहते हो इट विल गिव यू दैट मच साइज, नॉट एट। ठीक, तो ये अपना लिस्ट बड़ा होता जाएगा। तो जिनको लिस्ट की प्रॉब्लम थी कि सर लिस्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, तो आप पहले सर्च कीजिए कि आपको बुलेट पॉइंट्स वाला लिस्ट चाहिए या फिर नंबरिंग वाला लिस्ट चाहिए। अगर बुलेट पॉइंट्स वाला लिस्ट चाहिए जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो आप UI UL और इसके बीच स्टार्ट करो, क्लोजिंग के बीच LI ओपन और LI क्लोज के बीच में जितना रिपीटेशन लिखते चलोगे उतनी बार एक एक आइटम इसमें ऐड होता चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ओके, यस सर। हाँ ठीक है, चलो गुड। अभी ऑर्डर्ड लिस्ट को देखते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है कि हमारा इस हेडिंग को हटाओ, ये जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या है HTML के अंदर बॉडी है और बॉडी टैग के अंदर क्या है OL लिख दिया तो ऑर्डर लिस्ट हो गया। ऑर्डर लिस्ट में जो भी चीज LI, बाकी अंदर का एकदम सेम है, अंदर कोई चीज नहीं हो रहा है, बस टैग का नेमिंग जो बड़ा वाला टैग है इसका नेमिंग अगर आप कर दोगे OL तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा, UL कर दोगे तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको UL कर देता हूँ so then see what will happen, ये बुलेट पॉइंट्स में चेंज हो गया। and if I again convert it to OL, जीरो नहीं डाल देना बस सॉर्टेड लिस्ट। अभी होगा कि इसके बीच में अगर कोई दूसरा डाल दे तो क्या होगा, तो देखो नंबरिंग जैसे जैसे वहां अपीयरेंस रहेगा ना उस हिसाब से आएगा। यानी बीच में अगर मैं डाल देता हूँ टेस्ट, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा और नंबरिंग चेंज हो जाएगी, टी की नंबरिंग 3 हो जाएगी क्योंकि इस लिस्ट में टी तीसरे नंबर पे, सी। ठीक है, तो ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली आपका HTML कोड कर देता है। ओके, ये बात भी समझ में आ गई सबको? तो लेट्स Line. ओके, और एक होता है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये बहुत ही रेयरली यूज होता है। आपको जैसे कॉफी का डेफिनेशन लिखना और कॉफी के नीचे कुछ भी लिखना है, तो ये बहुत रेयरली यूज होता है। इसमें इसको हम लोग बाद में भी पढ़े तो चलेगा, लेकिन लिखते कैसे हैं ये इम्पोर्टेंट है। लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास इसको DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर रखेंगे पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन टाइटल, डिस्क्रिप्शन डाटा। तो डिस्क्रिप्शन टाइटल ओपन क्लोज करके कॉपी लिख दिया तो कॉपी दिख गया यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन डेटा
अंडरग्रेड में यहाँ पे अंडर ये डैश नहीं दिया ना, तो डैश नहीं आना चाहिए, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये डैश आएगा ही। सो डिस्क्रिप्शन डेटा के अंदर जो डिस्क्रिप्शन डेटा लिख दिया वो डेटा आ जाएगा। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये पेयर में चलेगा, ये दोनों ही पेयर में चलेगा। आप इसको जितनी बार भी रिपीट करोगे, सॉरी, आप इसको जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार ये आता जाएगा, है ना। ये पेयर में चलता है। डिस्क्रिप्शन का टाइटल और डिस्क्रिप्शन का डेटा दोनों ही आपको देना होगा। क्लियर? ओके, सो वी हैव सीन दिस। अभी हमें इमेज टैग के लिए तो हमने देखा हुआ, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इमेज टैग में क्या करते हैं कि इमेज एक यूनिक टैग है, इसमें ओपनिंग और क्लोज पता नहीं। तो अगर आपको इमेज इंसर्ट करना है तो लिखना है इमेज, और एसआरसी मतलब होता है सोर्स। SRC. हाँ, सोर्स, एसआरसी सोर्स इक्वल टू इमेज का आप नाम दो। लेकिन कॉन्स्ट्रेंट यही है कि आप जिस यहाँ इस फोल्डर में ये मैंने फाइल रखा है ना, तो इमेज की फाइल भी यहीं पे रखनी होगी, यहीं पे सेम फोल्डर में। अगर मैं किसी दूसरे फोल्डर में रखता हूँ तो मुझे उस फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा। तो अच्छा ऑप्शन ये है कि आप शुरुआत में अभी इमेज को उसी सेम फाइल में रखो जहाँ पे आपका HTML डॉक्यूमेंट है, जिसमें ये जिस डॉक्यूमेंट में ये टैग डाल रहे हो, जिस डॉक्यूमेंट में डालने का मतलब इस कोड में डाल रहे हैं ना, तो ये कोड की फाइल कहाँ पे है, यहाँ पे इस फोल्डर में है, तो इमेज भी इसी फोल्डर में यही इसके ठीक नीचे रहेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ऐसे इस बात को समझ सकते हैं। और इमेज के लिए अल्टरनेट टेक्स्ट डालते हैं, एक बात तो हमने बता दिया कि ये लोड करते समय जब इमेज नहीं दिखता है तब ये टेक्स्ट दिखता है। सो दिस इज इट अबाउट इमेज। अभी एक लिंक को हमने पढ़ा था कि लिंक कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं आज देखूंगा कि इमेज लिंक कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब ऐसा क्या होगा कि इमेज पे क्लिक करें तो कोई लिंक खुल जाए, है ना। तो दोनों को हाइब्रिड कैसे बनाएं, हाइपर। तो इमेज नॉर्मल लिंक्स कैसे क्रिएट किया जाता है, ए टैग के अंदर। ए टैग ओपन करते हैं और ए के अंदर लिखते हैं हाइपर लिंक रेफरेंस href, और इसमें जो भी यूआरएल होता है उसको डाल देते हैं, और जिस चीज पे क्लिक करके वो यूआरएल खोलना है वो चीज डाल देते हैं, और ए को क्लोज कर देते हैं, तो हमारा लिंक क्रिएट हो जाता है। अभी हम लोग एक देखेंगे कि कैसे एक इमेज पे हम कर सकते हैं ये काम। सो लेट्स सी सर्च लोगो फॉर any site. Suppose you are searching for sales, or you are searching for W3 schools. तो W3 schools की मैं यहाँ से इमेज ले लेता हूँ। देखिए ये एक इमेज है हमारे पास। Where I should save this image? मैंने बताया मुझे इस इमेज को वहीं सेव करना है जिस जहाँ पे हमें फाइल लिख रहा है। तो मेरे पास कोड से इमेज है, कोड में हम यहाँ पे जाके अपनी इमेज को रख दिया, नेम कर दिया W3 CHOOLS schools। सेव हो गई फाइल। यू कुड सी ये फाइल कहाँ पे, यहीं पे है ना, जहाँ पे हमारी फाइल है, जिस फाइल को चेंज कर रहे हैं वहीं पे हमारी ये फाइल रखी हुई। सो अब हम कोड पे जाते हैं। कोड पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर हमें इसे रखना कहाँ है इस इमेज को। तो फॉर द टाइमिंग लेट अस कंसीडर कि मैं इस इमेज को कहाँ रखूँ, इसमें रख देता हूँ, इस बॉक्स में, ठीक है। सो लेट्स कम हियर। अभी ये मेरा मेन्यू वाले ये बड़ा वाला डिवीजन है, ये बड़ा वाला डिवीजन है। इस बड़े डिवीजन में ये लेफ्ट डिवीजन या राइट डिवीजन है ना, लेफ्ट कंटेंट बॉक्स है ये। तो लेफ्ट कंटेंट बॉक्स के अंदर मैं इसे हटाता हूँ टेक्स्ट को, एंड देन व्हाट वी शुड डू, जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ नया नहीं दिमाग वाला है। इमेज HTML इमेज इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लिया, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सर स्क्रीन डिले हो रही है। अच्छा,
Click है. ओके, सो आई एम बैक. तो मैं ये कोड को क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ. ठीक है, विजिबल है, डिले होने से बताना मुझे. अब इस कोड को कॉपी किया, मुझे इसे रखना कहाँ पे है? एक्चुअली इमेज मुझे यहाँ इंसर्ट करना है. तो मैं जाता हूँ इस सेक्शन में और इसके टेक्स्ट को अभी मैं हटा देता हूँ, और हटाने के बाद मैं यहाँ ये वाला टैग डाल देता हूँ. अभी हमारा क्या है, हमारा जो इमेज है, हम अगर ध्यान से देखें तो इसका नाम है W3 schools. ठीक है, और इसका टाइप क्या है? PNG. ध्यान से देखेंगे अगर हम प्रॉपर्टीज में जाके, तो .png फाइल है ये. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कोड में .jpg वाला आया हुआ है, तो हमें एक्चुअल में वैसा ही रखना है जैसा. अभी मिस्टेक्स ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसको रीनेम पे जाते हैं और यहाँ से डायरेक्टली इसको कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, इस नेम को ही कॉपी कर लेते हैं टाइपो एरर्स को हटाने के लिए. दिस इज एन एक्सटेंशन वाज PNG. सो PNG. ठीक, अभी मैं इस ऑल्टरनेट टेक्स्ट को भी बदल देता हूँ. ठीक है, यहाँ मैं देता हूँ W3 लोगो. ठीक है, जब कुछ ना लिखे तो ऐसा कुछ लिखे. अभी मैंने हाइट विड्थ डेप्थ कुछ सेट नहीं किया. अभी मैं बस इसको चेक करता हूँ कि क्या आ रहा है. देखो आ गया ये W3 schools, लेकिन इस पे क्लिक करने पे भी कुछ हो नहीं रहा है ना. तो वी हैव टू सी कि इसको भी ठीक कैसे करेंगे. हमने दूसरा चीज क्या पढ़ा हुआ है कि हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं. तो लिंक्स क्रिएट करने के लिए क्या है, देखो अगर हमें लिंक क्रिएट करना है ना, तो मैं इस सेक्शन में ना एक जगह पहले लिंक क्रिएट कर लेता हूँ. जैसे मैं ये HTML ट्यूटोरियल है ना, मैं यहाँ पे नीचे में क्लिक का बटन ऐड करता हूँ, क्लिक हेयर. तो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के नीचे मैं लिखता हूँ इसमें इक्वल टू लगता है. क्लिक हेयर टू विजिट W3 schools वेबसाइट. ठीक है, यहाँ पे मुझे लिख दिया मैंने. तो देखते हैं यहाँ क्या आता है. यहाँ आ गया ना, क्लिक हियर टू विजिट W3. अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो खुल जानी चाहिए साइट में अपने पास. ओके, मैंने URL नहीं डाला. URL के बदले मुझे क्या डालना है? www.schools.com या .org. .com. ठीक है, तो क्या होगा, ए के अंदर हमने ए टैग के अंदर ही ये चीज लिखी है. इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, ध्यान से देखो. ये कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर, कंफ्यूज नहीं होना. ए टैग है, और ए टैग के अंदर जैसे स्टाइल लगाते हैं डिव के अंदर, वैसे ही इसके अंदर हमने लिंक डाल दिया. और इसके नीचे जो भी लिख दूंगा ना, ये पूरा ब्लू हो जाएगा, उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, और इस टेक्स्ट को पूरे को कभी भी क्लिक करने से हमारा वो लिंक खुल जाएगा. इस पे अगर मैं अभी क्लिक करता हूँ ना, तो व्हाट्स द बिग डील. ठीक है, ये आ गया. एक्चुअली वो FTP पे ले रहा था, तो ये लिंक खुल गया मेरा उस लिंक में. लेकिन ये इमेज पे क्लिक करने से कैसे खुलेगा? तो देखो, अगर मैं इस बॉक्स के अंदर जो भी रख दूंगा वो लिंक बन जाएगा. यानी अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस इमेज को इसके अंदर रख देता हूँ, मैंने कॉपी किया, इमेज टैग वाला यहाँ पे है ना, इमेज टैग को के पहले मैं ये लगा देता हूँ हाइपरलिंक, और इसे मैं क्लोज भी कर देता हूँ इमेज टैग के बाद. तो देखते हैं कि क्या होगा. लेट्स सी. अभी देखो, इस पे क्लिक किया तो खुल गया. यानी इमेज को अगर लिंक में कन्वर्ट करना है तो सिंपली वैसा ही प्रोसीजर है जैसे टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करना. गेटिंग माय पॉइंट? अभी हाँ चैट सर.
हाँ हाँ पूछिए। सर स्क्रीन डिले हो रही है। डिले हो रही है, ठीक है। अच्छा कुछ अगर मैंने अभी बताया कि इमेज को लिंक कैसे बनाना है, तो ये समझ, अगर इसमें कुछ डाउट रह गया तो मैं बोलूँ, तब वो मैं डील कर लूंगा ना। मेरा चैट बॉक्स खुल नहीं रहा, उसका प्रॉब्लम। सो किसने पूछा हुआ है, रिजवान सर, हाउ डिड दिस केम इन सेंटर। हुसैन, सेंटर कैसे आया, सेंटर कैसे आया, देखो मैंने कल बताया था, सेंटर लाने के लिए ये जो बड़ा वाला डिव था ना, उसमें मैंने मार्जिन ऑटो कर दिया, ऑटो मार्जिन करने से ये पूरी साइड सेंटर में आ गई, ठीक है। और सर वो मेन्यू का जो है वो भी सेंटर में है, तो वो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है, वो जो मेन्यू था हमारा मेन्यू, उसमें मैंने टेक्स्ट को कर दिया अलाइन सेंटर, ठीक है, तो वो सेंटर में आ गया। ओके। सर सेंटर टैग भी यूज कर सकते हैं ना, सेंटर टैग भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, सीएसएस को यूज करना ज्यादा आसान है, इसलिए मैं सीएसएस से बता रहा हूँ, है ना। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, देखो दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इस कोर्स के। एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं लाइन बाय लाइन आपको HTML पढ़ाऊं, फिर लाइन बाय लाइन में आपको CSS पढ़ाऊं, मगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यू शुड लर्न द स्किल, कि अगर आपको एट द एंड एक वेब बनाना आ गया ना, तो मेरे लिए ज्यादा वर्थफुल वो है, क्योंकि दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चों को हैंड्स ऑन स्किल हो जाए। अब थ्योरी बहुत बच्चे पढ़ते, पूरे इंडिया में सब यही कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या सर, कैन वी क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट विद इन ऑर्डर्ड लिस्ट, एकदम तेजवान कर सकते हो। पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लो, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट ले लो तो वो बन जाएगा, ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लो तो वो भी बन जाएगा। वो आप अपना हाइब्रिड प्रॉब्लम आप सर्च करते रहो, ट्रायल एंड एरर करो, इशू होने से मैं आपको बता दूंगा। वेदांत सर, कैन यू टेल व्हाट इज फ्लोट लेफ्ट। वेदांत आपने लेक्चर नहीं अटेंड करा क्या, मैंने 2 दिन बताया। और फ्लोट लेफ्ट को आप, फ्लोट लेफ्ट का मतलब क्या है, फ्लोट लेफ्ट, सी ये मेरा साइट है, ये जो दोनों टेक्स्ट है, ये लेफ्ट में कैसे चला गया और ये राइट में कैसे चला गया, ये 2 अलग अलग बॉक्स, जबकि ये बॉक्स ऊपर है और ये बॉक्स नीचे, लेकिन ये दोनों लेफ्ट में कैसे चला गया। तो इस बॉक्स को जब मैं डिफाइन कर रहा था, तो उसको मैंने बोला लेफ्ट, और इसकी विड्थ डिफाइन करी लेफ्ट बोलने के साथ साथ, और इस बॉक्स को जब मैं डिफाइन कर रहा था तो बोला फ्लोट राइट, और साथ साथ इसकी विड्थ डिफाइन करी। गौर से देखोगे तो ये वो वाला बॉक्स है आगे, हाँ ये लेफ्ट वाला बॉक्स है, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फ्लोट लेफ्ट, और साथ ही साथ इसकी विड्थ भी डिफाइन करिएगा 200 पिक्सल। विड्थ नहीं डिफाइन करोगे तो लेफ्ट फ्लोट नहीं काम करेगा। और दूसरा जो बॉक्स था राइट हैंड साइड वाला, उसमें मैंने लिखा फ्लोट राइट, और फ्लोट राइट लिखने के साथ साथ मैंने इसका विड्थ भी डिफाइन किया। क्लियर। अब क्या है, ये शरीर बहुत डिले आ रही है। अच्छा तेजवान, व्हाट इज फ्लोट लेफ्ट, कैसे क्या, व्हाट इज फ्लोट लेफ्ट, ओके सर थैंक्स, ठीक है। एनी क्वेश्चन, questions anymore? मैं ज्यादा इसके वीक में नहीं डील कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने बनाया इतना, अब जिन्होंने सबमिट कर दिया ना, तो आप इसको इंक्लूड करके सबमिट करो, ठीक है। टेक्स्ट जैसा मैं बता रहा ऐसा ही आप, कि जिस किसी किसी ने लेफ्ट साइड में टेक्स्ट इमेज डाला भी हुआ है, तो दैट्स नॉट एनीथिंग सो। सर सर ऑर्डर वाला एक और बार बता दो। ऑर्डर्ड वाला, लिस्ट वाला, हाँ सर। अच्छा हाँ देखो लिस्ट में क्या है ना, आ गया हाँ लिस्ट, सर। लिस्ट आ गया, लिस्ट लिस्ट में क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या है, जिसमें ऑर्डरिंग नहीं होगी, ऑर्डरिंग नहीं होगी मतलब जिसमें नंबरिंग नहीं होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट हाँ मतलब जिसमें नंबरिंग होगा, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना है मुझे,
तो क्या करेंगे, यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड, एस स्टैंड फॉर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यूएल टैग के अंदर जितना भी आप li ओपन li क्लोज करते जाओगे वो आपका सारा एलिमेंट क्रिएट होते जाएगा, लेकिन बुलेट पॉइंट्स नहीं लगेंगे। यही अगर यूएल की जगह ओएल कर देते हो तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसकी ऑर्डरिंग कर देगा। ओके सर। देखो अभी ये वाला है ना, इसकी ऑर्डरिंग कर देगा तो ऐसा हो जाता है। और HTML इस साइट को कितने लोगों ने पढ़ा, अभी कितने लोग विजिट किया, इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली प्रोग्राम करना स्टार्ट किया, लिखना, स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया? सेंड से मी यस। ओके यस, महेश, गुड, प्रखर, सर स्टार्ट started, Hussein has started, this one, okay, Aman, Manav, yes, at least एक तो जतिन, मैं आप लोगों को जानता हूँ started। और जिसने सत्विक, लेकिन आपने तो भेजा नहीं मुझे। सर वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ तो जल्दी करना है ना, अभी बहुत वर्क करना है, तो इतना प्रोग्रेस अगर डिले करेगा तो कैसे काम चलेगा, है ना? यस चिराग आपने भी सबमिट नहीं किया, स्टार्टेड से काम नहीं चलेगा, पूरा वीक में बहुत स्लो गया। और जिस दिन मैं जो बताता हूँ ना उस दिन उसको कंप्लीट करो। समा आपका मैंने देखा, इट वाज गुड, आप थोड़ा सा इम्प्रूव आपको करना है, और वैसे आपने मेहनत किया, अच्छा था। Okay, sir, I'll try. हाँ हाँ, मेतुल और आप लोग ने बहुत अच्छा किया हुआ है, लैब में भी आप लोग परफॉर्म थे, और बाकी लोग जो नहीं किए, और कल तो लैब में कुछ अटेंडेंस ही नहीं थी। इफ यू ईशान क्यों नहीं हुआ आपका? इससे आसान सब्जेक्ट भी हो सकता है कोई क्या, जिसमें कुछ याद भी नहीं रखना है आपको, सब कुछ एक कंप्लीट वेबसाइट है जहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, आपको बस ये समझना है कि मुझे यूज क्या करना है, और धीरे धीरे यूज करते करते आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी, बहुत सारी चीजें याद करने की कभी जरूरत भी नहीं है। मैं भी नहीं याद रखता, मैं भी नहीं याद रखता बहुत सारी चीजें, क्यों याद रखता? सर कल नेटवर्क फ्लक्चुएशन था बहुत, दिस वन, वहाँ पे हो सकता है कभी कभी ऐसा। मैं बार बार कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज नॉट आवर फ्रेंड, तो सो वी कैन से एनीथिंग। हाँ, ईशान सर फर्स्ट वन आई हैव गिवन, फर्स्ट वन नहीं, ये जो लैब है ना, ये लैब तो मैं मैंडेटरी है कि इस लैब का आपको सबमिट करना है, क्योंकि अभी से मैं लैब का पॉइंट दूंगा टिल सैटरडे। और एक बात तो पक्का है कि लैब टाइमिंग में जिसने जमा किया उसे हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा, उसके बाद जो जमा करेगा उसको तो पॉइंट कम होने ही है, 0.5 ही कम हो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन पॉइंट तो आपको कम मिलना ही है, आपको सेम डे सबमिट करना है, देन यू कैन अचीव हाईएस्ट पॉइंट। सर एक चीज पूछनी थी कि इतने सारे रूल हमको अभी सत्य आप ध्यान नहीं दे रहे क्या? मैं कितनी बार बता रहा हूँ, रूल्स को याद, कुछ याद ही नहीं रखना है, एवरीथिंग इज देयर ऑन HTML वेबसाइट। और हमें याद क्या रखना है कि हमें बस डिवीजन समझना है कि डिवीजन कैसे किया, बस डिवीजन वाले लेक्चर्स को मैंने बताया था, कि डिवीजन को समझ गया, डिवीजन समझने के बाद तो बाकी चीजें बस याद करनी है कि अच्छा ये कैसे होगा, आई हैव टू इंसर्ट इमेज, तो आप सर्च करो गूगल पे हाउ टू इंसर्ट इमेज इन HTML। देखो मैं सर्च कर किया इधर लिस्ट इन HTML और मुझे ये वाली पेज खुल गई, देखो ये लिस्ट वाली पेज खुल गई, इमेज इन HTML, देखो मुझे इमेज वाली पेज दिखा देगा सीधा, ये कुछ करना ही नहीं है, क्यों याद रखेगा? देखो ये इमेज SRC वाली पेज खुल गई, है ना? अभी मैं सर्च करता हूँ लिंक इन HTML, लिंक इन HTML वाली पेज खुल जाएगी। So I don't need to remember anything। अगर आप गूगल सर्च नहीं कर पाते हो तो अनफॉर्चुनेट है। हमको मुझे क्या सर्च करना है, CSS इन HTML, तो मुझे CSS वाली पेज खुल जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। CSS क्या है नहीं है, स्टाइल क्या होता है नहीं होता है, इंटरनल CSS एक्सटर्नल CSS सब कुछ बता देगा आपको।
तो ये इतना सर होशियार। हाँ बोलो। सर अब अभी जैसे अपन ने देखा कि वो फोटो पे क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट खुल जाती है। अगर फोटो पे क्लिक करके वो फोटो को मतलब फुल स्क्रीन पे लाना हो, ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ होगा, आगे होगा। इसके लिए नए नए फीचर आएंगे, आप गूगल सर्च करके देखो, ठीक है। कभी कभी ये क्यूरियोसिटी जब आती है ना आपकी, तब गूगल सर्च करके देखो कि हाउ टू जूम इमेज वाइल क्लिक। आप कुछ भी फ्रेज लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है कि करेक्ट इंग्लिश लिखना है। मतलब हो सकता है ना कि कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही है, इसको मैं लिख के पूछूंगा कैसे गूगल पे, तो आप रिलेटिवली कुछ भी पूछो, वो आपको निकाल के दे देगा कहीं ना कहीं। सर अभी लैपटॉप और एक ही। सर अभी जैसे फ्लोट लेफ्ट राइट कर रहे हैं अपन, तो उसमें एक फोटो भी डाल रहे हैं अपन लेफ्ट साइड पे, और अगर वो फोटो जो है वो साइज की नहीं है, तो जो बॉक्स का साइज है वो साइज की नहीं है, तो उसको तो कैसे इस इमेज को करना है? रिसाइज करना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, एक आप इसको मैनुअली जाके अ, अपने किसी फोटो एडिटर में रिसाइज करो, पहली बात, ठीक। सर दूसरी बात सर कि तो आप साइज कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा साइज का लेना है? साइज कैसे पता करेगा, ये तो ये बॉक्स का तो साइज आपको पता है ना, ये 200 बाई फिक्स कर दो इसको 200 बाई 200। इसका वेट तो हमें पता है ना 200, यहाँ हमने लिया हुआ है ना हाँ इसका वेट, वेट हमें पता है। हाइट भी सेट कर दो 200, और उससे जैसे अभी हमारे क्लास लेक्चर में यहाँ लोगो लगाएंगे, उस लेक्चर में हम देखेंगे कि इसको कैसे सेट करते हैं। और एक इमेज को, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बायोड सिलेबस है, लेकिन मैं सोचता हूँ वेरिफिकेशन पर कि इसको यहाँ से जब लोगो लगाएंगे तो पीएनजी इमेज में कन्वर्ट करना होगा। पीएनजी में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पीएनजी में कन्वर्ट करेंगे तब क्या होगा। ये दोनों ही ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। इट्स नॉट इन योर सिलेबस बट आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड। कोई भी साइट मेरा लोगो या फिर कोई एक